نئی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پی آئی اے کے مالی بحران سنگین ہونے لگے۔ ملکی اور غیر ملکی 35 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ایندھن کی فراہمی معمول پر نہ آنے سے متعدد قومی پروازوں کا شیڈول متاثر ہو گیا ہے۔ پی آئی اے کے مالی بحران سنگین ہونے لگے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی 35 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایندھن کی فراہمی معمول پر نہ آنے سے متعدد قومی پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پی آئی اے کا مالی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ملکی غیر ملکی 35 پروازیں ہیں جو کہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے ایندھن کی فراہمی معمول پر نہیں آ سکی ہے، جس کی وجہ سے متعدد قومی پروازوں کا شیڈول متاثر ہو رہا ہے۔ کراچی سے تربت، کوئٹہ اور مسقط کی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دبئی، کراچی اور اسلام آباد کی 3 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پی آئی اے کا اندرون ملک فلائٹ آپریشن متاثر ہونے پر نجی ایئر لائنز کی جانب سے مسافروں سے منمانا کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ نجی ایئر لائنز نے اندرون ملک پروازوں کے 35 سے 70 ہزار روپے تک کرائے وصول کیے۔ پی آئی اے کے نارمل آپریشن پر نجی ایئر لائنز اندرون ملک پروازوں پر 58,000 سے 30,000 روپے تک وصول کر رہے تھے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ جی، دیکھا جائے قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے، اس کی جو مالی بحران کی وجہ سے جو فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے، تو اس کے بعد نجی جو ایئر لائنز ہیں جس میں ایئر بلو ہے، ایئر سیال ہے، سرین ہے اور فلائٹ دبئی ہے، تو یہ یہاں پہ جو ہے فلائٹ جنہ کا جو انہوں نے منمانی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے فیئر میں، اور کراچی اور لاہور کے جو نارمل فیئر تھے، جیسے کہ ایک ہفتے پہلے کی میں بات بتاؤں، 16,000 17,000 روپے کی جو ٹکٹ تھی وہ 35,000 40,000 70,000 روپے تک بیچی ہے۔ اور یہاں پہ جو کنسرنس یہ ہو رہے ہیں کہ جو لوڈ آیا ہے وہ جیسی دیگر ایئر لائن پہ لوگوں نے جو پی آئی کی پروازیں جو منسوخ کرنے کے بعد جو ہے نجی ایئر لائن پر گئے، من مانا اضافہ یعنی دگنے سے اوپر جو ہے من مانا اضافہ وصول کیا گیا ہے۔ آج بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے ہفتے جو فلائٹ کی جو 16,000 17,000 روپے کی جو ٹکٹ تھی، آج بھی 35,000 30,000 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو دیکھا جائے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے پہلے بھی متعدد بار جو ہے ایسی جو اضافی وصولی پہ جو جانچ کی ہے، اس پہ جرمانے بھی کیے ہیں، لیکن ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے اندرون ملک سفر کرنے والوں کو جو ہے کھلے عام من مانا اضافہ وصولی کی جا رہی ہے۔ اور کراچی سے چاہے لاہور جانا ہو، کراچی سے اسلام آباد جانا ہو، اور اس وقت جیسے کاروبار کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے لاہور یا اسلام آباد جانا ہے تو دگنے سے زیادہ جو ہے فیئر کرایہ دینا ہوگا اگر ایئر ٹریول کرنی ہے۔ نجی ایئر لائن یہاں پہ کنسرنس یہ کرنی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے فلفل کرنے کے لیے کرایہ میں جو ہے جو فیئر کے آٹومیٹک ریٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت بتائیں کہ اگر آپ جا کے ابھی آن لائن بھی بک کرائیں اگلے 2 دن یا 3 دن کے لیے بھی، تب بھی فیئر زیادہ آ رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہاں یہ بتایا جائے، ابھی ہماری جو ترجمان پی آئی اے سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو فلائٹ شیڈول جو متاثر ہوا تھا نارمل جلد ہو جائے گا، کیونکہ پی ایس او کے ساتھ جو ان کی جو چیزیں ہیں مالی بحران وہ جلد حل ہونے جا رہا ہے، فیول کی سپلائی بھی بحال ہو جائے گی۔ لیکن اس فیول سپلائی کے مسئلے میں پی آئی کے فلائٹ شیڈول متاثر ہونے میں عوام ایک بار پھر رول رہی ہے۔ جو مسافر ہیں جو اندرون ملک بھی جاتے ہیں ان سے دگنا کرایہ لیا جا رہا ہے۔ جو 16,000 17,000 روپے کا کرایہ تھا وہ 30,000 35,000 40,000 اور 70,000 روپے بھی وصول کیا گیا ہے۔ اور یہاں جو آج کا فیئر میں بتاؤں، اگر آج آپ ٹکٹ بک کراتے ہیں تو اس وقت بھی 30,000 روپے کا فیئر آ رہا ہے، جو کہ پچھلے ہفتے 16,000 17,000 روپے میں بک ہو رہا تھا۔ کنسرنس یہ ہے کہ جو بھی مالی بحران آتا ہے، جیسے کہ پی آئی اگر اس کی فلائٹ نہیں اڑ رہی ہے تو سیدھا جو نجی ایئر لائن ہے اس کا منافع کمانے لگے ہیں۔ اچھا اشرف، یہ بھی بتائے گا کہ منمانا کرایہ تو وصول کیا جا رہا ہے، تو اس کا جب لوگ پوچھتے ہیں ایک دم سے اتنا کرایہ کیوں بڑھ گیا ہے، تو کیا آگے سے ان کو جواب مل رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ کرایہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ جی، ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے 3 ممبران سے ہم نے بات کی، ایک سابق چیئرمین ہیں، ان سے بھی بات کی، نعیم شریف، انہوں نے کہا ہے کہ سیدھا سا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوڈ بہت زیادہ ہے۔ جب لوڈ آتا ہے، جب بکنگ آتی ہے، کیونکہ آن لائن سسٹم بھی ہے، آن لائن جب ڈیمانڈ زیادہ آتی ہے، لوگ خود بھی ٹکٹ لینے جاتے ہیں، تو جتنی آپ اس کو کلک کر کے اس کی بکنگ ڈالیں گے تو اس کا فیئر بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ڈیمانڈ ایک فلائٹ ہے جس میں 200 کے قریب مسافر اگر جانے ہیں تو 200 کے قریب 400 لوگ اگر ڈیمانڈ مانگیں گے تو کرایہ بڑھتا جائے گا۔ ابھی وجوہات
वजूहत ये हैं कि जो PIA की जो फ्लाइट जो मुतासिर हुई है, क्योंकि PIA ने अपना शेड्यूल जो है रीशेड्यूल कर लिया है और वो परवाज़ें से उड़ा रही जिसको फ्यूल मिल रहा है, जितनी अदायगी कर रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ परवाज़ें वो कम हो गई हैं। मजमूई तौर पर जैसे कि आज हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो बताया कि 30 से 35 परवाज़ें जो है मनसूख की गई, जो मजमूई तौर पर जो शेड्यूल के अंदर थी वो मनसूख हुई हैं। और लेकिन जो यहाँ पे अभी मजमूई तौर पर बात करें तो जो एयरलाइन के 20 से 21 तैयारे हैं वो फ्लीट में मौजूद हैं। इसके बावजूद जो है यहाँ पे जो कमी का सामना है, जिसका फायदा जो निजी एयरलाइन उठा रही हैं, और डिमांड और सप्लाई को जवाब बनाकर किराए में इजाफा किया जा रहा है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने कहा है हुकूमत को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो भी जब इजाफी मनमाना किराया वसूल होता है तो उसका नोटिस लेती है। यहाँ जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है उन्होंने भी मुतालबा किया है कि कंपटीशन कमीशन फौरी एक्शन ले और जो फौरी एक्शन ले मुतालबा किया जा रहा है। अशरफ खान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब कराची में लैंड ग्रैबर्स के गिर्द घेरा तंग, आज गडाप एयरपोर्ट और माड़ीपुर में ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 300 एकड़ से ज़ायद अराजी खाली करवाई गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए कराची में लैंड ग्रैबर के खिलाफ 2 रोज कबल ऑपरेशन शुरू किया गया था और ये ऑपरेशन जारी है आज भी। इसमें मुख्तलिफ अजला को चुना गया था ऑपरेशन के लिए। मलीर जिले के 3 सब डिवीजन थे और कल फिर कैमाड़ी जिले के मंगोपीर सब डिवीजन में भी ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहाँ पर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साहब, उन्होंने बताया है कि अभी 3 एराजी इन तीनों सब डिवीजन में खाली कराई गई है और तकरीबन अरबों रुपए की है मालियत की जमीन है। और इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ घर बने हुए हैं, मुख्तलिफ प्लाट पे कब्जा किया हुआ है, तमाम सरकारी एराजी है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ शेड्स बनाए गए हैं, फार्म्स भी बनाए गए हैं गली किस्म के। ये तमाम बड़ी हेवी मशीनरी के साथ इनको मुनज़्ज़म किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। आज जो है ऑपरेशन का दायरा एयरपोर्ट सब डिवीजन और गडाफ सब डिवीजन में है, जबकि मंगोपीर में आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ये सिलसिला है, ये ऑपरेशन अभी तक जारी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दीगर अजला में, आज ये 2 अजला में चल रहा है, इसके बाद आज मरीज का 3रा दिन है। जिला मलीज से जब ऑपरेशन खत्म होगा तो फिर किसी दूसरे जिले में यही मशीनरी पहुंचाई जाएगी। और बकौल डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट के ये ऑपरेशन का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहेगा और कराची के तमाम अजला में लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा एकड़ है ज़मीन जो वागुजार करवाई जा रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है, लेकिन दोबारा कब्ज़ा माफिया से रोकने के लिए क्या इक़दाम साथ साथ किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये काफी अहम सवाल है कि ये पहले भी इस तरह के ऑपरेशन होते रहे हैं, जमीन खाली करवाई जाती है, लेकिन लैंड माफिया इतना पावरफुल है कि दोबारा कब्जे कर लेता है। तो अब इन्होंने कहा है कि जो जमीन खाली करवाई जा रही है वहाँ बाकायदा सरकारी गार्ड या सरकारी लोगों को तैनात किया जा रहा है ताकि वो उसकी निगरानी करें, वहाँ पे दोबारा से कब्जा शुरू ना हो सके। उसके तौर पर तो ये होना चाहिए कि ये जो सरकारी जमीन है ये पूरी एराजी जो है गवर्नमेंट की है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एराजी है जिस पर लोग कब्जे करते हैं। उसूली तौर पे तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अपना कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए ताकि कब्जा माफिया कब्जा कर ही ना सके। लेकिन कराची में ये चंद 100 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ एराजी पर कब्जे हैं और पावरफुल लैंड माफिया के कब्जे हैं। इस तरह के ऑपरेशन कभी भी उनको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस बार निगरान हुकूमत की जो हिकमत अमली है, जो रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं यूनुस दागा, उन्होंने खुद बताया भी था कि इस बार हमारी हिकमत अमली ये है कि ये ऑपरेशन खत्म करा के इसी जमीन को टोटल गवर्नमेंट के कब्जे में दिया जाएगा और हजारों एकड़ जमीन से कब्जा खत्म करवाया जाएगा। अच्छा, आज आपने भी जिक्र किया है पावरफुल लैंड कब्जा माफिया, अभी वो इलाके आई थिंक अभी बाकी हैं, वहां पर प्रॉपर कार्रवाई होगी ऑपरेशन के लिए? जी देखिए, कराची के 7 अजला में, बल्कि पूरे कराची में खासतौर पे जो हाईवेज के इलाके हैं या जो देही इलाके हैं, ये कब्जे बुनियादी तौर पे शहरी आबादी वाले इलाकों में कम है, लेकिन जो देही इलाके हैं और जो हाईवे के साथ मुंसलिक इलाके हैं इनमें ऑपरेशन है। जैसे मंगोपीर सब डिवीजन में
ہاکس بے جو ساحل سمندر کا علاقہ ہے وہاں پہ لوگوں نے قبضے کیے ہیں. اس طرح نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے جو موٹر وے ہے، ہائی ویز کے کناروں پر جو دیہی آبادی ہیں وہاں پر سرکاری جیسے گڈاف ہے، گڈاف ہائی ویز کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. تو ایسے ظاہر ہے کہ ایک کراچی میں 1 ایکڑ زمین کی جو اراضی کی جو قیمت ہے وہ بھی کروڑوں روپے ہے. تو یہاں 10 20 30 ایکڑ زمین پہ قبضے ہیں تو یہ اربوں روپے کی مالیت کی زمین ہے. ویسے تو اربوں خربوں روپے کی اربوں خربوں روپے زمین کی مالیت ہے جو کہ واگزار کروائی جا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر یہ آپریشن کیے جا رہے ہیں. عاجز جمالی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. عاجز بہت شکریہ. اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن کیماڑی عائشہ منور نے محکمہ انسداد تجاوزات ماڑی پور کے عملے کے ہمراہ بھٹا ولیج اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی ہے. اس کارروائی سے متعلق جانتے ہیں اپنے نمائندے رضوان احمد سے. جی رضوان. بالکل شہر بھر میں انسداد تجاوزات کی کارروائیاں جاری ہیں تاکہ لوگوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو سہل بنایا جا سکے. اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ کیماڑی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آج ایک کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. سب ڈویژن کیماڑی میں بھٹا ولیج اس کے مختلف علاقوں میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے جو کہ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن کیماڑی شائستہ منور کی سربراہی میں انجام دی جا رہی ہے. ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ میم. فرمائیے گا آج کی جو کارروائی تھی اس میں کیا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کے جو بھٹا ولیج کے جو مکین ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمس کا شکار تھے اور کافی کمپلینس کر رہے تھے کہ میڈم ہمارے لیے ڈیلی چلنے پھرنے میں بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں ہمیں. تو ہمیں کمشنر صاحب کی طرف سے اور ڈپٹی کمشنر کیماڑی کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشنز تھیں کہ آپ لوگوں نے انکروچمنٹس ریموو کرنی ہے اور لوگوں کے لیے جتنا پاسبل ہو آپ نے آسانی کرنی ہے. تو انہیں انسٹرکشنز کے تحت آج ہم نے یہاں پہ بھٹا ولیج میں اپنا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کنڈکٹ کیا ہے اور ساری سافٹ انکروچمنٹس کو ہم ریموو کرا رہے ہیں تاکہ روڈز بالکل کنجسٹڈ ہو گئے ہیں اور لوگوں کے لیے چلنا پھرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو وہ بالکل ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہم وہ ریموو کر رہے ہیں اور روڈز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اینٹی انکروچمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ٹی ایم سیز کے بھی ہیں، کے ایم سی کا محکمہ بھی موجود ہے، اسسٹنٹ کمشنرز بھی کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خود جو ہے فیسیلیٹ کیا جاتا ہے مختلف اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی جانب سے، عملے کی جانب سے. ان کے اگینسٹ کوئی کسی قسم کی کارروائی جب تک نہیں ہوتی مکمل طور پر اس کا خاتمہ دکھائی نہیں دیتا. اس سلسلے میں کوئی اقدام اٹھائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو بھی سارے اداروں نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو زیادہ اہم کردار نبھانا ہوتا ہے ہمیشہ. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایسی کوئی بھی چیز ہم تک پہنچتی ہے تو ہم تو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ سارے ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کے چلیں. جیسے ابھی ہمارے ساتھ ڈی ایم سی کے لوگ بھی ہیں، پولیس کے اہلکار بھی ہیں، تو سیکیورٹی بھی ہے، سارے ہم لوگ مل کے یہ آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور ابھی تو ادارے سارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جتنی آسانی لوگوں کے لیے ہو اداروں کی پراپر لائزون کے ساتھ ہم کر سکیں. اس طرح مکمل اس انکروچمنٹ کو جو ہے وہ ریموو کیا جائے گا. اور یہ بتائیے گا مجھے ساتھ میں کہ انشور کس طرح ہوگا کہ یہ آئندہ انکروچمنٹ یہاں پر نہ ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہمیں اپڈیٹ کرتا رہتا ہے اور پھر ہمارے اپنے بھی جب وزٹس ہوتے ہیں تو ہم نوٹس لیتے ہیں اس چیز کا. اور اس کے علاوہ ہم ذرا ریگولر یہ آپریشنز کنڈکٹ کریں گے تاکہ جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ادھر وائلیشن ہو گئی ہے، پھر سے انکروچمنٹ ہو گئی ہے، پھر ہم اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشنز لے سکیں. بالکل. شائستہ منور جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں کیماڑی کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے بلکہ گاہے بگاہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے گا تاکہ مزید انکروچمنٹ جو ہے وہ قائم نہ ہو سکیں اور انکروچمنٹ کا بدستور خاتمہ، اس کے فوائد عوام تک پہنچ سکیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان. ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. آپ کو بتائیں کراچی میں ڈینگی اور ملیریا کے وار تھم نہ سکے. 24 گھنٹوں میں 14 نئے کیسز سامنے آ گئے. ساؤتھ میں 6، ایسٹ میں 5، سینٹرل، کرنگی، ملیر اور کیماڑی میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. بات کریں گے ہماری نمائندہ رابیل اشرف سے. رابیل اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل. لیکن شہرکان میں ڈینگی کے مزید جو ہے وہ 14 کے رپورٹ ہو گئے ہیں. سمر سنگھ گھر میں ڈینگی کے جو تعداد ہے وہ 293 ہو گئی ہے. صوبہ میں اب تک کراچی میں 180، حیدرآباد میں 100 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے. صوبہ بھر میں ڈینگی کے بعد جب تک کوئی ہلاکت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ ملیریا کے بعد بھی جو ہے وہ شہرکان جاری ہے. کراچی ڈویژن میں سب سے کم 2774 مریض جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اسی طرح حیدرآباد ڈویژن میں سب سے زیادہ 2,315 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، رابیل اشرف اپڈیٹ کر رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ.
खाम माल की कमी और सप्लाई चेन में दरपेश मसाइल। होंडा का कारसाज प्लांट की आर्जी बंदिश का ऐलान है। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बंद रहेगा। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी देखा जाए, पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाले तीनों कंपनियों ने प्लांट आरजी बंद करने का फैसला किया है, जिसमें होंडा कार बनाने वाली कंपनी ने प्लांट 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आरजी बंदिश की है। साथ ही टोयोटा कार बनाने वाली इंडिया मोटर ने भी प्लांट 1 माह के लिए आरजी तौर पर बंद कर दिया है। टोयोटा बनाने वाली कंपनी ने प्लांट 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि मौजूदा काम माल की कमी और पार्ट की कमी का प्लान आरजी तौर पर बंद किया जा रहा है। और कंपनी इंतजामी ने मौजूद के पेश नजर प्लान के आगे बंदिश के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया है। पाक सुजुकी कार बनाने वाली कंपनी ने भी प्लान 25 अक्टूबर से जो है 27 अक्टूबर तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। और यहाँ ये भी बताया कि जो काम माल की कमी है, साथ में स्पेयर पार्ट की किल्लत है, जिसकी वजह से पैदावार प्लान जारी नहीं रख सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि तीनों जो कार बनाने वाली कंपनी है उन्होंने आरजी बंदिश का ऐलान कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया है। साथ ही रिलीफ आवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर दिया। काविश मेमन से मज़ीद जानेंगे। जी काविश। बिल्कुल देखें, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 40 रुपये और डीजल 15 रुपये सस्ता किया है। अब मकामी सनत के लिए कितना फ़ायदा होगा, इसमें मेरे साथ सनतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मसला सिर्फ यह है कि जब कीमतें कम होती हैं तो सार्फिन पे उसका असर मुंतकिल नहीं करते ही है। कीमतें बढ़ती हैं तो शाम में मीटिंग करके दूसरे दिन नए फेयर, नए किराए जो हैं वो ऐलान कर दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि जो इतना बड़ा इम्पैक्ट है 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और 15 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल का, इसमें इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि उसको कम करवाया जाए, किराए कम कराए जाएँ और पावर के बिल भी, बिजली की बिल भी जो है इससे जितना भी कम करा सकते हैं, जो इम्पैक्ट है उसमें फ्यूल का वो कम कराया जाए। फ्यूल एडजस्टमेंट में 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये महीना बढ़ा देते हैं। अब फ्यूल ही एडजस्टमेंट में आपने कीमतें कम होंगी, उसको कम करना होगा। और सब मुंतज़िर हैं, आज जो भी लोगों ने बातें की उनकी सब की एक ही मुतफ़क़ी सोच है और मुतालबा है कि खुशाइन बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसको अक्रॉस द बोर्ड कम कराया जाए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी तो बनती है, आप कैसा देखते हैं? इंतज़ामिया अपनी कारकर्दगी दिखाई दे रही है? देखिए, इंतज़ामिया ने कम कराने के मामले में, किराए कम कराने के मामले में मैंने इतना ज़्यादा मौसर नहीं पाया उनको। लिहाजा इस बार आपके चैनल के तवज्जुह से मैं यही कहता हूँ कि ये एक स्टेप हुआ है कि कीमतें कम हुई हैं, दूसरा स्टेप यह है कि कीमतें कम कराना है, जो इंतज़ामी इदारों की ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और बिज़नेस कम्युनिटीज़ के तमाम फोरम से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है कीमतें कम होने का, वो किरायों की शक्ल में और जहाँ जहाँ भी इनका इम्पैक्ट है वहाँ पे कीमतें कम कराई जाए। ठीक है, बिल्कुल देखें, मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी है, लेकिन इसका रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाने की ज़रूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के वफ़द की फंक्शनल लीग हाउस में आमद जमात इस्लामी की जानिब से आज होने वाले फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। वफ़द में जमात इस्लामी सिंध के अमीर मोहम्मद हुसैन भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिएगा आज वाली होने वाली कॉन्फ्रेंस से। जी बिल्कुल, देखिए, जमात इस्लामी के वफ़द ने जो है दीगर सियासी जमातों की तरह फंक्शनल लीग को भी जो है अपनी जानिब मदऊ किया है। वफ़द में जो उनका क़यादत थी वो मोहम्मद हुसैन मेहनती अमीर जमात इस्लामी सिंध थे, उनके अलावा इत्तलात सेक्रेटरी सिंध मुजाहिद चन्ना और दीगर भी शामिल थे। इसके अलावा GD की जानिब से जो है जो रहनुमा थे उन्होंने डॉक्टर सफदर असी, सरदार अब्दुल रहीम और जगदीश आहूजा शामिल थे। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से होने वाले आज जो फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में उसकी शिरकत की दावत दी गई, जबकि GDA ने इस दावत को कबूल भी किया और GDA की जानिब से जमात इस्लामी की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी करवाई गई है। इसके हवाले से मज़ीद बताना चाहूँगा कि फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस वो है जो फ़लस्तीन के मामले पर जमात इस्लामी ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें दीगर सियासी जमातों को जो है दीगर सियासी जमातों को भी मदऊ किया गया है। बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। अब आपको अपडेट करें, शहर में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस की कोशिशें जारी हैं। कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में CCTV कैमरों का नेटवर्क कायम करने का फैसला कर लिया गया है। बात करेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज।
جی بالکل، شہر میں اسٹریٹ کرائم کے جو معاملات ہیں وہ پولیس کے لیے بھی درج ذیل بنے ہوئے ہیں، شہریوں کے لیے تو بہرحال پہلے سے ہی اس وقت موجود ہوں ٹیپو سلطان تھانے میں، اور ایس ایس پی ایسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بہادر. وہ یہاں پر اس وقت میٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں، معززین ہیں، جو خاص طور پہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کے ہیں، وہ بھی اسٹریٹ کرائم سے بہت پریشان تھے لوگ، تو انہوں نے ان کو آج انوائٹ کیا. عرفان بھائی، یہ بتائیے گا کہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے خاص طور پہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ سے متعلق بتائیے گا اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ہم نے اسٹریٹ کرائم کو لے کے پچھلے 1 مہینے میں 3 فیزز میں مختلف کارروائیاں کی ہیں. پہلا فیز تھا جس میں ہم نے وہ گینگز آئیڈینٹیفائی کیے جو یہاں پہ مختلف اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کر رہے ہیں، جس میں گلشن اقبال، عزیز بھٹی میں کئی گینگ سامنے آئے، گلستان جوہر اور شارع فیصل کے اندر کئی گینگز ہمارے سامنے آئے، ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 1 مہینے کے اندر ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے کوئی 47 کے قریب پولیس مقابلے ہوئے ہماری ملزمان کے ساتھ. ایک فیز تو یہ تھا جس میں ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، دوسرا فیز تھا ان کے خلاف کارروائی کی. اب تیسرا فیز ہے کہ کمیونٹی کو ہم انوالو کر رہے ہیں، اپنے ہر تھانے، ہر علاقے کے لوگوں کو جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں کے جماعت کے لوگ ہیں، وہاں کی مختلف NGOs کے لوگ ہیں، ان کو انوالو کر رہے ہیں. ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے اس اسٹریٹ کرائم کی تدارک کے لیے ہمارا ساتھ دیں. اور وہ ساتھ کیسے دیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہر علاقے کے اندر، مثال کے طور پہ یہ ٹیپو سلطان تھانہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کے اندر ہم CCTV کیمرے کی انسٹالیشن کر رہے ہیں. ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم تھانے کے اندر اسٹیبلش کر رہے ہیں جس کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جائے گی. وہ کنیکٹ ہوگا ہمارے پیٹرولنگ یونٹس کے ساتھ، تاکہ جیسے ہی کہیں پہ کوئی اسٹریٹ کرائم رپورٹ ہوتا ہے تو وہ پیٹرولنگ یونٹ فوری طور پہ کارروائی کرے گا اور لائف کیچز وہاں پہ جو ملزمان ہیں ان کو پکڑ سکے گا. 3 فیزز میں کارروائی کی جا رہی ہے. پہلے فیز میں ملزمان سے ٹکراؤ ہوا، مقابلے ہوئے، ملزمان مارے بھی گئے، 570 سے زائد گرفتار بھی ہوئے. اب جو پولیس کی کوشش ہے وہ کمیونٹی کو انوالو کر رہی ہے، ایک بہت اچھا سائن ہے. اور اس میں CCTV کیمراز بھی لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس ایریا میں CCTV کیمرے جو ہے وہ پرسنل تو لوگوں نے لگائے ہوئے تھے، لیکن اب وہ پولیس سے اگر کنیکٹ ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بہتری آ سکتی ہے اس میں. اور SSP صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم ورکنگ کریں اور کمیونٹی ہمارے ساتھ شامل ہو تو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کو روکا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے. جسٹس نعمت اللہ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ چاہیے ہے. مزید بات کریں گے نعمان گل سے. نعمان، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے. جی ہاں بالکل، یہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے. عدالت نے پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب لاپتہ افراد سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ چاہیے. ہمیں رپورٹ دی جائے کہ پولیس لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیا کام کر رہی ہے. جسٹس امجد سیتو نے بھی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 20 GITS کے سیشنز ہوتے ہیں تو کوئی شخص بازیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں. عدالت نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جلد اقدامات کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے، جبکہ آئندہ سماعت پر پولیس حکام سے لاپتہ افراد سے متعلق پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. جی ٹھیک ہے نعمان، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سندھ ہائی کورٹ میں مرزا شوگر مل کی جانب سے نجی بینک کو قرضے کی عدم ادائیگی کا کیس ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 20 سال بعد تنازع کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے مرزا شوگر مل کی جانب سے بینک کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی ہے. مزید بات کریں گے، نعمان گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان، اپڈیٹ کیجیے گا مرزا شوگر مل کی جانب سے جو کارروائیاں آگے آ رہی ہیں. جی ہاں بالکل، یہ سندھ ہائی کورٹ میں مرزا شوگر ملز کی جانب سے نجی بینک کو قرضہ دینے کی عدم ادائیگی کا یہ کیس ہے جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے 20 سال بعد تنازع کا فیصلہ کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں بینک نے قرض شیڈول کے مطابق رقم واپس کرنے کے پر کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا. بینک کے خلاف بھی مرزا شوگر ملز نے انصافی مارک اپ اور چارجز کے خلاف یہ کیس دائر کیا تھا. عدالت نے مرزا شوگر ملز کی جانب سے بینک کے خلاف دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے. عدالت نے بینک کی درخواست منظور کرتے ہوئے رقم کی ادائیگی کا حکم بھی دے دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ.
कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फोत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों के इदारे में भर्ती को यकीनी बनाया जाए। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मुलाजमीन का एहतजाज है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फोत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों की इदारे में भर्ती को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल ये कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है कि जो KMC के तहत चलाया जाता है और यहाँ जो KMC है उसके जो हालात हैं वो सबके इल्म के अंदर है। सूरत हाल ऐसी है कि क्या IHDO अब्बासी शहीद अस्पताल हो या फिर कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, यहाँ का जो बजट है वो हमेशा से जो है वो उसके हवाले से मुश्किलात रही हैं। यहाँ के जो मुलाजमीन आज एहतजाज कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो फोत होने वाले मुलाजमीन हैं, एक तो उनके बच्चों को फौरी तौर पर नौकरियाँ दी जाएँ, इसी तरीके से 17 ग्रेड के ऊपर के जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर मुस्तकिल ताख़ीर होती है, ये मसला भी फौरी तौर पर हल किया जाए। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो ये बताएगा कि आपके मुतालबात क्या क्या हैं, क्या इस हवाले से जो इंतज़ामिया उनके सामने आपने रखे हैं, उसके अलावा जो मेयर कराची है उनसे आपकी मुलाकात हुई है, उनके सामने आपने कोई मुतालबात रखे हैं? अच्छा, मेयर कराची से मेरी मुलाकात बाई फेस नहीं हुई है, वैसे मैंने उनके नुमाइंदों से मिला, अपना मैसेज मैंने उनको दिया है। मेन हमारी प्रॉब्लम है ग्रांट की, जो हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। तकरीबन हमें चाहिए थी 6 करोड़ कुछ समथिंग चाहिए थी, तो उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए इस महीने हमें देना शुरू किए हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे हमने इनको डिमांड पेश की थी कि हमारे स्टाफ का जो इंतकाल हो गया है उनके बच्चों को जॉब का, तो हमने उनसे कहा था कि गवर्नर साहब ने कि हेड ऑफिस में तमाम बच्चों को कर दिया था, तो KMDC में भी हमारे बच्चों को किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ मेयर कराची से कि हमारे बच्चों का भी जो जॉब है, उनकी सिर्फ 8 बच्चे हमारे जो ऑर्डर पे उनके इंतज़ार करें, सिर्फ साइन करनी है और वो हमारी जॉब पे आ जाएंगे हमारे बच्चे। और हमारे DPC का मेन पॉइंट जो हमने एहतियात रखा है, ये हमारे बच्चों का, और ये DPC हमारे साथ नहीं, नाइंसाफ़ी हो रही है। इसमें रिश्तेदारियों को तो हो गई है मगर हम लोग की नहीं हो पा रही है। हम तकरीबन 8 साल से ऐसे ही बैठे में एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी DPC हमारा हक बनता है और जो तालीम याफ्ता हैं उनको आगे लाएँ। जो तरीक़ेकार है, हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, हम जब भी जाते हैं अपना फॉर्म लेके, अपने अपील ये फ़ौरन हमारी इंतजामिया उस डिब्बे में डाल देती है। अच्छा जी, इनका कहना है कि जो जब भी इन्होंने मुतालबात रखे, इनके मुतालबात की सुनवाई नहीं होती है। आज सुबह से ये एहतजाज मुलाजमीन की जानिब से जारी है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी कुछ देर पहले कि जो यहाँ पर बड़ी तादाद थी। इरफान अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया। कराची बार एसोसिएशन ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर रखा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए आज कराची बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची बार एसोसिएशन के सदर सीनियर एडवोकेट आमिर सलीम साहब। आमिर साहब, इसराइली जारियत जारी है फ़लस्तीन में, तो आज आपने हड़ताल का ऐलान किया है, तो क्या क्या आज जो है अमल होना है यहाँ पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हाँ, बिल्कुल उनसे इजहार यकजहती करने के लिए हमने आज यहाँ कराची बार में स्ट्राइक की है। सिटी कोर्ट्स आपने देख लिया, सब बंद है। जिस तरह से इसराइल ने वहाँ बर्बरियत का निशाना बनाया हुआ है फ़लस्तीनी अवाम को, उनके हॉस्पिटल्स पे जिस तरह से अटैक हुआ, 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों, इस तरह के ये जंगी जराइम में आता है। और हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म है ये जंग। अगर इनको लड़नी है तो जंग अपने जंग के लिहाज से लड़ी जाए। ये निहत्ते अवाम पर बम्बार्डमेंट और इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा, आपको पता है कि कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। वहाँ पे अमेरिका ने वैसे वीटो कर दिया उनकी। तो हम उस पे हैं कि फ़लस्तीन के अगर हम वहाँ जा नहीं सकते तो कम से कम हम मोरल उनके सपोर्ट तो कर सकते हैं। उनको खाने पीने की अशिया की अशद ज़रूरत है, जो वहाँ हालात हैं, दवाओं की ज़रूरत है, वो तमाम अक़वाम को मिल के वहाँ पहुँचाना चाहिए। अब तक उसका इंतज़ाम नहीं हुआ। मिस्र से रास्ता बंद किया हुआ है, तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो आज हमने इस बात पर स्ट्राइक की है और इंशाल्लाह हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। हमारे दिल उनके दिलों के साथ धड़कते हैं। हमने हमेशा उनका साथ दिया है, मोरली सपोर्ट की है हमने हमेशा, और आज भी हम उनके साथ हैं।
जी बिल्कुल, देखा आमिर सलीम साहब का यही कहना था कि वो फ़लस्तीनियों के साथ है, इसलिए आज इज़हार यकजहती के लिए स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था जिसके मुताबिक जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट जजेस से दरख्वास्त भी की गई थी कि वो आज जो तमाम कार्रवाइयों से मनसूख करें, जबकि जो कैदी हैं उन्हें भी आज जेलों से अदालत में पेश नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जौहर मोड़ नुमान एवेन्यू के करीब डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर 23 साला साद को कत्ल कर दिया। इस सवाल से अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा है अनुषा जाफरी। जी अनुषा, देखिए गुज़िश्ता रोज़ जो है वो गुलिस्तान जौहर मोड़ पर जो है वो एक नौजवान 23 साल जिसका नाम साद था, डकैती मजम्मत पर डकैतों ने गोलियां मारकर उसको जहाँ भाग कर दिया। कोराम का समय इस वक्त हमारे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका जवान बेटा क्या जॉब करता था। ये न्यू कराची के रिहायशी हैं। हम देख रहे हैं एक अफसोस का मकाम है कि फिर से एक नौजवान जो है वो डकैतों के हाथों जहाँ भाग हो गया। ये कोई पहला वाकया नहीं, कई ऐसे घर जो है वो उजड़ चुके हैं। क्या करता था आपका बेटा? वहाँ पर वो गया था, क्या जॉब करता था? वो साइड एरिया में टेक्सटाइल मशीनरी का टेक्नीशियन था और वहाँ जॉब करता था। वहाँ से फारिग होने के बाद 6-7 बजे जब भी फारिग होता था वो वापसी में बाइकिया का काम करता, बाइकिया की राइड उठाता था। बस वो बाइकिया की राइड उठा के ऑफिस से फारिग हो के वो वहाँ जौहर बाइकिया की राइड छोड़ने गया और वहाँ से वापसी आते वक्त मेरी बात हुई है उससे। उसने कहा मैंने एक राइड उठाई थी, मैंने जौहर छोड़ी है, अब मैं वापस आ रहा हूँ, दुआ करें कि मुझे एक राइड और मिल जाए ताकि मेरे पेट्रोल का खर्चा पूरा हो जाए। बस इस चक्कर में, और जब मेरी बात हुई है 7:30 बजे का टाइम था और 20 मिनट बाद जो है हमें फ़ोन आया है कि आपके बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, आप जिना अस्पताल पहुँचे। वो गालिबन किसी पुलिस वालों ने फ़ोन किया था। जब हम वहाँ जिना पहुँचे हैं तो बस उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक हमें यही बताया जाता रहा कि उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए दुआ करें। लेकिन 2 घंटे बाद पता ये चला कि उसका पोस्टमार्टम भी हो गया और उसकी FIR वगैरह दर्ज हो गई, बाकी हमसे बयान लिया गया। और उसके बाद बताइएगा आपके बेटे को कितनी गोलियां मारी गई? मेरे बेटे को एक ही गोली मारी गई है जो सीधी दिल में मारी है। और जी बाइक पे था और वहाँ से वापस आ रहा था। जौहर शादीशुदा नहीं था, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं सिर्फ एक ही मुतालबा करूंगा कि बस किसी और माँ की गोद उजड़ने से पहले इन दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं और हमें इंसाफ दिलाएं। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया। पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर इन दरिंदे, जो वर्ड यूज किया है इनके वालिद साहब ने कि ये जो डकैत घूम रहे हैं इनको जो है फौरी तौर पर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो उनका बेटा जो है वो करता था और इनके वालिद साहब भी जो है वो बेरोजगार हैं। इन्होंने निगरान हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और अगर निगरान हुकूमत इनके वालिद को जो है वो रोजगार पे लगाते तो ये अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे और साथ साथ अपने घर का किराया भी जो है वो अदा कर सकेंगे। जी, जामिया कराची में फीसों में 30% इजाफे पर तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है एकेडमिक काउंसिल का एक इजलास मुनक़िद हुआ था जिसमें जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने जो है तलबा की फ़ीसें हैं उसमें 30% इजाफे का जो है ऐलान किया था, जिसका इतलाक जो है साल 2024 में होगा। इस वक्त मेरे साथ जो है शोबा उर्दू के कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं जिनका ये शिकवा है कि महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में जो है 30% फीसों में इजाफा करना यकीनन एक बहुत ही एक ऐसा अमल है जिससे तालिब इल्मों को और इनके वालिदैन को जो है सख्त तरीन जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मुझे बताइए 30% इजाफा क्या मुतालबा है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये मुतालबा है और मेरा ये ख्याल है कि अब महंगाई का दौर है, सबको पता है इतना महंगाई हो चुका है। तो स्टूडेंट दूर दराज से आए हुए हैं वो घर से अखराजात नहीं लाते या घर से अपने जो पैसे वगैरह नहीं लाते, तो यहाँ से वो ख़ुद अपनी मदद आप काम करके या कुछ भी करके कमाते हैं और उसी पे अपने अखराजात पूरे करते हैं। तो यहाँ पे 30% फीस बढ़ाने की वजह से इन लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो इतना इसका वो नहीं हुआ है। तो मेरा ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इसको वापस ले ले और तालिब इल्मों का ख्याल रखे क्योंकि तालिब इल्म ही नहीं पढ़ेंगे तो मुल्क का मुस्तक़बिल कैसे बनेंगे और ये लोगों के लिए मसाइल। जब तालिब इल्म ही नहीं पढ़ेंगे तो उनका मुस्तक़बिल कैसे बनेगा? ताहम ये तालिब इल्मों का ये मुतालबा है जामिया कराची की इंतजामिया से कि फिलफौर ये जो इनका फीसों का 30% इजाफे का जो फैसला है उसको वापस लिया जाए और तालिब इल्मों को एक रिलीफ फराहम किया जाए। जी
सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ करंगी के कार्डियोलॉजिस्ट ने पहली मर्तबा एक रोज़ के बच्चे की दिल की कामयाब सर्जरी कर ली है। मज़ीद बताएंगी राबेला अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर कल एक कामयाब सर्जरी तय पाई है कि 26 घंटे का जो बच्चा था उसकी जो है दिल की कामयाब सर्जरी करी है। हमारे साथ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्जुमन मौजूद है, इनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि कामयाब कल सर्जरी हुई है, कितने घंटे लगे थे, बच्चे को क्या क्या सिचुएशन थी और किस तरह आप लोगों ने कवर किया और कितने टीम मेंबर्स थे? जी देखें, टीम मेंबर ऑब्वियसली ये पूरा टीम का काम था, लेकिन ये जब बच्चा आया तो फिर इन्होंने मुझे बुलाया तो हमने एको पे इसकी डायग्नोसिस बनाई। डायग्नोसिस में इसका ये है, बच्चे का जो दिल है उसमें से जो दिल के दाएं खाने से शरेआन जो निकल के फेफड़े में जाती है और दिल के बाएं खाने से शरेआन निकल के जिस्म में जाती है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसकी शरेआनें उल्टी लगी हुई थी। अगर ये उल्टी शरेआनें लगी हुई हों और कहीं पे और कोई सुराख ना हो तो फिर उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, और अगर उसमें कोई सुराख ना बनाया जाए इमीडिएटली तो बच्चे का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह का प्रोसीजर वैसे तो हम एज ए स्पेशलिटी में रूटीनली करते हैं, लेकिन इस तरह का प्रोसीजर, बेड साइड प्रोसीजर, इस हॉस्पिटल में या पब्लिक सेक्टर में ये पहली दफ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्जुमन मौजूद थे। उनका यही कहना है कि बच्चे की जो उल्टी शरेआनें थी और ऐसी हालत में बच्चे को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कामयाब सर्जरी तय पाई है। और हमने कल देखा था कि वज़ीर सेहत ने भी नोटिस जारी किया गया था जिसमें डॉक्टर अर्जुमन और उनकी टीम को काफ़ी खराज तहसीन भी पेश की गई थी, और एक कामयाब सर्जरी जो है वो 36 घंटे का जो ये बच्चा था और उसकी कामयाब सर्जरी तय पाई है। जी, अंदरूनी मुल्क से कराची आने और जाने वाली ट्रेनें आज भी ताख़ीर का शिकार हैं। इस पर मज़ीद अपडेट करेंगी अक्सा शाहिद। बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और अंदरूनी मुल्क चलने वाला ट्रेन ऑपरेशन मामूल के मुताबिक आज भी ताख़ीर का शिकार है। कराची पहुँचने वाली कई ट्रेनें ऐसी हैं जो ताख़ीर से कराची पहुँच रही हैं। इसमें हम आपको ट्रेन शेड्यूल अगर बताएं तो रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है, मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट, जबकि इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनें हैं जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होती हैं। इस वक्त भी हमारे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि कितनी देर से जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, कब से आई हुई अपनी और किसको रिसीव करना है? मैं अपनी मामी को रिसीव करने आई हूँ। एक्चुअली मैं 10 बजे से आई हूँ, लेकिन स्टिल जो है मैं वेट पर हूँ, अभी तक ट्रेन नहीं आई। कौन सी ट्रेन आ रही है? कौन सी ट्रेन आ रही है? तेज़गांव। 10 बजे से बैठे हुए हैं, देख ले अब चाय पीने जा रहे हैं थक के, और क्या करेंगे, धक्का अब कितनी देर लगेगी आने में ये तो पता ही नहीं। बिल्कुल यकीनन जो है वो 10:30 बजे की जो है वो तेज़गांव की जो है वो ट्रेन की टाइमिंग थी, लेकिन अब तक वो यहाँ पर नहीं आई है। 10:30 बजे से ये इंतज़ार कर रहे हैं। अब तकरीबन जो है वो 12 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। इसी तरह जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि जब सिंध के ट्रैक पर जब ट्रेन आती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड को जो है वो स्लो कर दिया जाता है, जबकि पंजाब के ट्रैक पर जो है वो फास्ट अपनी स्पीड के मुताबिक चल रही होती है। ज़रा ये कहते हैं कि वहाँ की जो पटरियाँ हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि वहाँ पर जो है स्पीड में जो है वो ट्रेन को रखा जाए, और जब तक वो ट्रेन कराची नहीं आती वो स्पीड में नहीं आती। अब इस पर जो है वो ट्रेन इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ देने से जो है वो इनकार किया है, और मज़ीद ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्पीड की वजह से जो है वो यहाँ पर मामूल बन गए कि ट्रेन जो है वो ताख़ीर का शिकार होती है। जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टूर्नामेंट में क्रिकेट मुकाबलों का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद। जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत जो है इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा राउंड इस वक्त जो है जिना क्रिकेट स्टेडियम में जारी था, जो कि हैप्पी पैलेस स्कूल एनसीसी ने जो है ये मैच विन कर लिया है। पाक तुर्क स्कूल से इनका ये मुकाबला हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं इनके खिलाड़ी और कप्तान, हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि कप्तान थे आप, कैसा लगा और क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आप लोग को ये मौका दिया है, मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले हो रहे हैं, क्रिकेट का ये मुकाबला चल रहा है, तो कैसा रहा आपका ये मैच और कितने का आप लोगों को विन किया था, कितनी विकेटों पे आपने कोई रन बनाए हैं, और क्या समझते हैं ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट कितना ज़रूरी है या कोई भी स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? सबसे पहले हम शुक्र अदा करना चाहेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का, जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया हमारे लिए, जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता स्कूल क्रिकेट में। उन्होंने प्रमोट करा टैलेंट को, इससे जो परफॉर्म करेगा वो आगे भी जा सकता है, यानी उनका नाम हम टैलेंट वो होगा प्रूफ। और उन्होंने हमें 115 का टारगेट दिया था, हम लोगों ने 12 ओवर बनाया 3 आउट के उसमें। अच्छा, हमारे साथ और भी खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा रहा इस तरह के मौके जब यंग ग्रास रूट लेवल पे मिलते हैं यंग लड़कों को, तो टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, तो आप क्या समझते हैं कितना ज़बरदस्त ये इवेंट है जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करा रहा है? पहले सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बोर्ड का कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया जिसमें हमें खुद को प्रूव करने का मौका मिलता है। ऐसे मतलब बहुत कम टूर्नामेंट्स होते हैं,
तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। फिर अगर जो अच्छा परफॉर्म करता है उसे आगे खेलने का मौका मिलता है, और आज हमने इनको 115 का इन्होंने टारगेट दिया था, हमने 3 विकेट के नुकसान पे इनको शिकस्त दे दी थी। देखिए ये हमारे साथ मौजूद थे खिलाड़ी जिनका ये कहना है कि सेकंड राउंड का इनका ये मैच था, पहला राउंड का मैच भी ये जीते, दूसरा भी जीते, तो इनकी आगे जो है ये जो मज़ीद इनके राउंड है उसको जो है मैच जीत के आगे सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और जो है हैप्पी पैलेस स्कूल एनसीसी को जो है ये विन कराने में इनका अहम किरदार अदा करेंगे। जी। और दुनिया भर में आज ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद बात कर लेते हैं आयशा आफरीन से। जी आयशा। जी, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका शिकार हर साल लाखों ख़वातीन हो जाती हैं, और बरवक्त तशख़ीस ना होने के बाइस ये ख़वातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। आज दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए आज डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या और क्या अलामात हैं। पहले मुझे ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और इसके अलामात क्या हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कैंसर कॉमन है ख़वातीन में वो ब्रेस्ट का कैंसर है, यानी छाती का कैंसर। अब इसमें 90% जो ऑफ द पॉपुलेशन है फीमेल में कैंसर्स में 90% कैंसर होता है ब्रेस्ट का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको अर्ली डायग्नोस करें और मुनासिब टाइम पे इसका इलाज करें तो 90 to 99% इसका सर्वाइवल होता है, यानी कि आजकल इसका इंतहाई कामयाब और अच्छा इलाज मौजूद है। बस इसकी शर्त यह है कि आप इसको जल्दी डायग्नोस करें और जल्दी इलाज शुरू करें। मेरी आज के दिन के तवज्जुह से और वैसे भी तमाम ख़वातीन से अपील है कि आप अगर सेहतमंद हैं, अजान है तो जहान है। अगर आपके टाइम पर तशख़ीस हो जाएगी और टाइम पर इलाज शुरू हो जाएगा तो बहुत कामयाब इलाज मौजूद है। तो डरें नहीं, घबराएं नहीं। अगर किसी को ऐसी कोई अलामत है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। देखिए स्टेजेस इसके मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आपको शुरू में ही कोई हैवीनेस या लम फील होता है तो फ़ौरन उसका इलाज मतलब छोटी सी भी गिल्टी फील होती है और अगर उसी वक्त डिटेक्ट कर ली जाए तो कभी कभी तो वो इसे हम कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू, यानी कि बिल्कुल शुरू की स्टेज होती है, और वो अगर पकड़ ली जाए और उसका टेस्ट हो जाए और उसकी बायोप्सी हो जाए तो बहुत जल्दी कामयाब इलाज शुरू हो जाता है और इलाज हर जगह बआसानी अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया। जान है तो जहान है, और दुनिया भर में इस हवाले से काफ़ी मुहिम चलाई जा रही है और ख़वातीन को इस हवाले से आगाही फराहम की जा रही है ताकि वो इस मर्ज़ को जल्द तशख़ीस कर सके, ताकि इसका इलाज मुमकिन हो सके। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।